So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In today's video we are going to talk about the entire procedure for your training after your CS executive. ठीक है, even after completing your training you have to complete your professional and then one more training is there. So we will talk about all of that. This video is going to be a complete guidance for all the training procedures that you have to do online, offline and everything. ठीक है, एंड इस वीडियो में मैं जो आपको गाइडेंस देने वाला हूँ ना, वो गाइडेंस शायद आपको कोई ना दे. अंडरस्टूड? आई विल बी टॉकिंग अबाउट all the myths and also I will be clearing all the doubts of the students. I'll be telling you what is happening in the market, how you should achieve it, how you should target it, how you should get your best placement for your training, which is suitable as per your objectives, your goal. कहाँ पे करना है, नहीं करना है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, कैसे अचीव करे द मैक्सिमम स्टाइपेंड एंड ऑल दैट स्टफ. So I'll be very frank with you. So there are some dark gray areas and there are some beautiful colorful areas for your entire procedure. ठीक है? Over these years, I have been guiding all the students for their training. In between, they feel something. In between, they have a lot of questions. After joining, you will have a lot of questions. So this video is not just about your doubt solving before their training. Okay, this video will solve doubts when you are undergoing training and you have something in your mind, a question is there in your mind, and I know what that question is. I'll be explaining you that question immediately in this video. Understood? So you don't have to worry about anything. So even if you are not starting your training at this moment, or you're thinking to start your training at this moment, during your training tenure, what are the things that may come up? What are the challenges that may come up? I'll explain everything today in this video. So before starting this video, I'd like to ask all the students to like to this video, share it with your friends and family, and this is going to be a very evergreen video until and unless ICSI changes the training pattern. Okay? Okay. We'll start with it. So this is the complete 2026 CS articleship and EDP roadmap. Okay. First of all, we are going to talk about when to join, how to join, when to join your EDP, how to join your EDP, can we join before, can we join after, all these questions we will discuss over here. And also the training scope. Training, kahan se kare training, from where should we do, how to find the best training placements. Got it? All the stuffs we will be discussing over here. So let's start with it. First of all, I'll tell you one thing over here. I'll tell you, once you complete your executive, you have to do a P-training program. Okay, that is called the EDP. Now the EDP happens in two parts, that is 15 days online and then 15 days offline. Okay, now I'll be explaining this first. 15 days online, 15 days offline. A total expense of 8,000 rupees depending upon your city. Okay, it is costing. Understood? Now I'll tell you how to do it. Now after you complete your EDP, your 21 months training will start. That is the practical training. Okay, a lot of students ask कि सर EDP करने से पहले, before we do EDP, can we directly do the training, can we directly start the training? The answer is no. Okay, you cannot start your training before completing your EDP. You have to mandatorily complete your EDP and after that you will start with your training. Understood? Got it? Until and unless you complete your EDP, कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी भी ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, maybe it's a company, maybe it's a firm, वो लोग आपका जो tenure है वो start नहीं करेंगे until and unless your EDP is done. Understood? So do not have this mindset कि हम लोग ऐसे ट्रेनर से बात करके we will start. No, लिखित में ICSI के पास ये रिकॉर्ड जाता है. ICSI will have the record कि आपका 21 months जो है वो complete होगा कि नहीं. There is no escape from it. You have to complete it. 21 months training. ठीक है? And until and unless your EDP is done,
your time will not start for your training program, for your practical training program. So 100% EDP is mandatory, and then you can start your training program. Anybody in between who is thinking ki I will find a shortcut and do this and that and all that, please get this thing out of your mind. You cannot do that. You have to complete your EDP and then you have to come to your training program. Is this much clear? This is the overview. Okay, EDP करना है, उसके बाद 21 months का training करना है. Got it? Now understand this. First of all, to start your EDP, you have to complete your CS executive all groups. Mandatorily you have to complete all the subjects, then only your EDP will start. EDP 30 days it will take, 15 days online, 15 days offline. I'll tell you what are the things that you will do in online, what are the things that you'll do in offline. उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा. उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, एंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यू कैन डू योर CS प्रोफेशनल. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, they complete their CS professional and then do the practical training. What I would advise is, anybody who thinks कि they cannot manage CS professional and CS training at the same time can do one thing. आप सबसे पहले एक काम करो, आप प्रोफेशनल का एक ग्रुप देकर देखो, ठीक है, जून हो या दिसंबर हो. विदाउट स्टार्टिंग योर ट्रेनिंग यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल ऑल्सो. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि CS एग्जीक्यूटिव के बाद ही आपको ट्रेनिंग करना ही है. यू कैन स्टार्ट योर ट्रेनिंग आफ्टर CS प्रोफेशनल ऑल्सो, बट दैट इज़ हाईली नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज आई टेल यू, आपके अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लग सकता है. हु नोज, राइट? आपके अटेम्प्ट्स लग सकते हैं. इसमें क्या होगा, आपके डिले होता जाएगा. योर For example, if you're taking 2 to 3 attempts for clearing CS professional, so यहीं पे आपका 1.5 साल जो है ना वो वेस्ट हो जाता है. Understood? So I would advise each and every student, after completing your executive, directly join your training program, and professional जो है आप एक मॉड्यूल करके दे के निकाल लो. That is more beneficial for maximum students out there. Now there are students who wants to aim for rank and all. They can think about it, they can go for it. ठीक है, it is upon your decision कि आप क्या करना चाहते हो. अगर आप प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. अगर आप प्रोफेशनल करने के साथ साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. नाउ मैक्सिमम स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंड कि आप प्रोफेशनल करने के टाइम जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे, यही आपके लिए बेटर रहता है. बिकॉज from 1 lakh student, maybe 100 students are genius who can crack the examination CS professional in the first attempt. बाकी students का life long जो है ना tenure time जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, and you will be regretting after giving 1-2 exams कि why didn't I start my training. Understood? So my practical advice to all the students, complete your training along with your CS professional. That is the most suitable thing you can do. After completing your training, listen to me very carefully, after completing your practical training and after completing your CS professional, after passing CS professional, there is another training structure for a few days, that is CLDP. Understood? That we will discuss further later. ठीक है, सो यहाँ पर CS प्रोफेशनल के बाद भी आपको CLDP करना है, उसके बाद जाके यू बिकम अ कंप्लीट CS. अंडरस्टूड? आई होप दैट इट्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, नाउ CLDP is not something very huge for a long period of time, because CLDP is a complete process of 30 days training. ठीक है, CLDP में आपका 30 days ट्रेनिंग होता है. 15 days नॉन रेजिडेंशियल क्लासरूम मोड and the other 15 days is residential classroom mode. It's a very different thing. ये आपको focus करना after clearing CS professional. ठीक है, today in this video we are going to talk about the main practical training that we are going to do after cracking CS executive. Is that clear? ठीक है, and after CS professional you have to do CLDP, that is 30 days, 15 days non-residential and 15 days residential. Okay, we will discuss that later. Okay, understand this very properly. A lot of students think that they can start the training, okay, they can start the training without doing EDP. The reality is EDP is legally required before your long-term training begins. I have explained you this. Got it? Now EDP होता क्या है? सबसे पहले हम लोग EDP के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, द 15 plus 15 30 days जो आपका EDP प्रोसीजर होता है वो होता है आपका 15 days ऑनलाइन EDP एंड 15 days क्लासरूम मोड EDP. ओके, हाउ टू डू इट? 15 days आपका जो ऑनलाइन EDP होता है ये आपको आपके ई लर्निंग पोर्टल पे ही करना है.
अंडरस्टूड। जैसे आप एग्जीक्यूटिव पास करोगे, आप जाओगे अपने ई लर्निंग पोर्टल पे, वहीं पे आपको ऑनलाइन ईडीपी जो है 15 डेज का शो करेगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है आपका ऑनलाइन ईडीपी। इट्स अ 15 डेज प्रोसीजर। व्हाट डज वी डू ओवर देयर, सिंपल वीडियोस है, वो आपको देखना है बस। ओके अगर आप चाहो तो इस वीडियो को ऑन करके ऐसे ही बैठे रहो, ठीक है, वो कंप्लीट होता जाएगा, 15 डेज कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड और समथिंग लाइक दैट, नथिंग इज आस्क्ड इन दी ऑनलाइन ईडीपी। ओके, नो इंटरेक्शन विद द टीचर्स, नथिंग। सिर्फ आपके वीडियोस रहेंगे, वो आपको एक्सरसाइजेज रहेंगे, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड वंस यू डू दैट, उसके बाद आपका जो है क्लासरूम ईडीपी स्टार्ट होगा, जो 1-to-1 आपका ट्रेनिंग जो है रीजनल ऑफिसेस, चैप्टर्स में आपको जाके कंप्लीट करना होता है 15 डेज का। ओके, नाउ टू डू योर ऑनलाइन ईडीपी इट इज़ वेरी सिंपल। आफ्टर क्लियरिंग योर सीएस एग्जीक्यूटिव यू विल डू इट फ्रॉम योर ई लर्निंग पोर्टल। ठीक है, इनके जो सारे लिंक्स रहेंगे ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना कि कहाँ से करे क्या करे। ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल। नाउ क्लासरूम ईडीपी, हाउ टू डू इट, हाउ टू ज्वाइन इट। ओके, नंबर 1 थिंग इज, कहीं पर भी आपका घर हो, ठीक है, आपका जो नियरेस्ट ICSI चैप्टर है ना, उनके साथ आपको कांटेक्ट करना है। नियरेस्ट ICSI चैप्टर, फॉर एग्जांपल योर ICSI चैप्टर इज नॉट नियर योर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में जाके करना है। ओके, देयर इज नो प्रोसीजर कि आपका जो ये 15 डेज क्लासरूम ईडीपी है ये आप ऑनलाइन कर लो। ठीक है, देयर इज नो सच प्रोसीजर लाइक दैट। आपको फॉर्मली टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करके यू हैव टू कंप्लीट योर 15 डेज का क्लासरूम ईडीपी। Now, how to join it? You have to contact your nearest ICSI chapter. Simple as that. इससे इजी मैं तुमको कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर वेबसाइट में जाके हम लोग एनरोल वगैरह कुछ नहीं करना होता है। सिंपलेस्ट प्रोसीजर इज यू हैव टू कांटेक्ट योर नियरेस्ट चैप्टर, वही आपको करवा देंगे, वही लोग आपका जो है पूरा प्रोसीजर बता देंगे, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ दिस हैपन्स आफ्टर एवरी इंटरवल, मोस्टली एग्जामिनेशंस के बाद ज़्यादा बैचेस रहते हैं, एंड यू हैव टू इंक्वायर कि बैच कब स्टार्ट होने वाला है, एंड तब से आपको ज्वाइन करना है फॉर दिस। ओके, नाउ this the expense that you pay is around 8k rupees, depends upon the city that you are in. Sometime it depends upon the city that you are in. 8k rupees का खर्चा लगता है, including your online and offline जो है EDP. Understood? Now this price may vary time to time. आज के डेट में 8k है, कल शायद 10k हो जाए। ठीक है, now EDP के लिए आपको ये अमाउंट पे करना होता है। Now when you go for the chapter EDP, आपका होता ये है, वहाँ पे आपको लंच वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको सुबह जाना है, सुबह पकड़ लो 9-10 बजे स्टार्ट होगा, शाम के 5 बजे आपको छुट्टी हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे होता क्या होता ये है कि टीचर्स जो है थोड़ा ब्रीफ करते हैं आपको रिगार्डिंग ऑल द रेगुलेशंस, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, एंड ऑल दिस चैप्टर, सम डिफिकल्ट कंपनी लॉ टॉपिक्स। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप हमारे चैनल से कंपनी लॉ के टॉपिक्स वगैरह देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, वहाँ पे आप ब्रिलियंटली आंसर्स कर पाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव प्रोसीजर जो आपका क्लासरूम ईडीपी होता है, वहाँ पे आपको टीचर्स गाइड कर देंगे। अंडरस्टूड? आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लासरूम ईडीपी, नाउ द बिगेस्ट थिंग दैट इज द 21 months प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दैट स्टार्ट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। ये तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर ये देखो ई लर्निंग पोर्टल मैंने बता रखा है, आपको 15 दिन का ई एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है EDP जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपको करना है। दैट इज ऑनलाइन, एंड देन फिर से आपको ऑफलाइन करना है। ठीक है, 15 डेज का। गॉट इट? दैट इज क्लियर। नाउ ऑनलाइन में ये आपको लेक्चर्स वगैरह देखना है, एक्टिविटीज एंड क्विजेस कुछ ऐसे रहेंगे, वो आपको करना है, कंप्लीट कर देना है सारा जो आपका एक्टिविटीज़ रहेंगे। उसके बाद यू हैव टू डाउनलोड योर PDF कि हाँ मेरे पास ई सर्टिफिकेट आ चुका है फॉर माय ऑनलाइन EDP। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। करेक्ट? उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा सुनो एक चीज़, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, EDP कंप्लीट हो चुका है। EDP एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन यू हैव टू विजिट योर नियरेस्ट चैप्टर फॉर द एक्यूरेट डेट्स। ठीक है, एक्यूरेट डेट आपको मिल जाएगा, नियरेस्ट चैप्टर की विजिट करना है। एंड देन ऑनलाइन तो आपका ई लर्निंग पोर्टल से हो ही जाता है। करेक्ट? सिंपल एज दैट। नाउ
किसी भी स्टूडेंट को इसको लेकर भी दिक्कत हो ना, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करो, वी विल सॉल्व इट आउट फॉर यू, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अब मेन चीज स्टार्ट होने वाला है। 21 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है आपका, ठीक है। नाउ बिफोर कमिंग टू दिस कि हम लोग पीसीएस फर्म में ज्वाइन करें या फिर कंपनी में ज्वाइन करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द कॉन्टैक्ट्स, कि हम लोग किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। हम लोग जो है देखो, सबसे ब्रिलियंट मेथड मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से देखना है। योर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ईडीपी इज कंप्लीटेड, ईडीपी इज डन, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू हैव टू गो फॉर योर 21 डेज ट्रेनिंग। I'll talk about stipend and everything over here. You have to listen very carefully, okay? वरना तुमको एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा तुम्हारा। सिंपल मैं बात बताता हूँ, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा तुम्हारा, मैं तुमको बताता हूँ। 21 डेज ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला जो आप कनेक्शंस बनाओगे वो आप बनाओगे ऑफलाइन ईडीपी में। ऑफलाइन ईडीपी में जितने भी टीचर्स आएंगे उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाना है, उनसे आपको गाइडेंस लेना है कि कहाँ से कौन से कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी कहीं पे कौन सा स्टेट बेटर रहता है एंड ऑल दैट, वो लोग गाइड कर देंगे। एंड आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देयर गाइडेंस, ठीक है, उसको मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूँगा कि वो लोग क्या गाइड कर रहे हैं। दे विल डेफिनेटली नो देयर करंट सिटी। किसी भी सिटी में आप कर रहे हो तो सिटी का सिचुएशन वो लोग, उनको पता रहता है, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे ये वो, ठीक है। ये सबसे बढ़िया रहता है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गेटिंग योर ट्रेनिंग डन, अंडरस्टूड। मतलब कहाँ से करना है तो वो लोग गाइड कर देंगे, यहाँ से करो। वो लोग कॉन्टैक्ट भी शेयर कर देंगे आपको कि इनसे बात करो, इनके कंपनी में या फिर इनके एलएलपी में आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। सो दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ गेटिंग इट, ठीक है। नाउ इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये होता है कि देखो, इंस्टीट्यूट ने मिनिमम स्टाइपेंड बता रखा है, 2-3 हज़ार रुपये मिनिमम स्टाइपेंड रहता है, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। मार्केट में स्टाइपेंड का क्या रियलिटी है मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू आर इन अ गुड सिटी, ठीक है, अगर मैं एवरेज सिटी भी लूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन सिटी कैलकाटा, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड 10K से लेकर 25K तक मिल जाता है। नाउ 10K इज़ फॉर दोज फर्म्स, ठीक है, अगर आप फर्म ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 10K जैसा स्टाइपेंड मिल जाता है। एंड 25K स्टाइपेंड इफ़ यू ज्वाइन ए कंपनी। नाउ कंपनी में स्टाइपेंड 15,000 से लेकर 20,000 मिनिमम आपका रहता ही है। एंड 5K एक्स्ट्रा 25K तभी रीच करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ टॉपर और समथिंग, और इफ़ यू हैव एक्सीलेंट नॉलेज अबाउट द थिंग, अंडरस्टूड, जो भी वो लोग पूछे आपसे, वहाँ पर अगर आपका एक्सीलेंट नॉलेज हो तो वो लोग कंसिडर करके आपका स्टाइपेंड 25K तक, मेरे स्टूडेंट्स ने 25K तक स्टाइपेंड जो है ले रखा है, अंडरस्टूड। तो दिस इज द प्रोग्राम, अंडरस्टूड, दिस इज द एंटायर फॉर्मेट ऑफ योर स्टाइपेंड। अब जो छोटे शहर वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, एंड ऑल्सो सम ऑफ द टीचर्स हु कम ऑन योर ऑफलाइन ईडीपी, दे विल ट्राई, उनके ज़्यादातर टीचर्स के फर्म होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर टीचर्स के फर्म होते हैं जो कि आके आपका ऑनलाइन ऑफलाइन ईडीपी करवाते हैं, ठीक है, उनका खुद का फर्म होता है, तो दे विल ट्राई टू पुट यू इन देयर ओन फर्म। एंड आपको जो बताया जाएगा वो ये है कि मार्केट स्टाइपेंड रेट इज़ 5K एंड यू हैव टू डू योर ईडीपी योर ट्रेनिंग अंडर माई गाइडेंस, और आपको 5K दिया जाएगा। नाउ इट इज़ अपॉन योर चॉइस कि आप उस टीचर के अंडर जाना चाहते हो कि नहीं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि दिस टीचर्स हु कम फॉर योर ईडीपी, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है, दे ट्राई टू ईडीपी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अंडर में ले लेते हैं विद गिविंग द मिनिमम, बेयर मिनिमम स्टाइपेंड, सो यू डोंट हैव टू फॉल फॉर इट। मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको ऐसे फॉल नहीं करना है इनके अंदर कि हाँ मेरे पास तो मुझे पता भी नहीं है कहाँ से मेरे को ट्रेनिंग करना है, मैं इन्हीं के अंडर चला जाता हूँ एंड ऑल दैट। ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू नो योर वर्थ, ठीक है। आज के डेट में अगर आप लोग या फिर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर अपनी वैल्यू को ना जाने एंड उनको पता नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट थिंग्स, द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, तो आप लोग इसके अंडर आ जाओगे एंड आप लोग ज्वाइन कर लोगे विद 5K। दिस इज नथिंग यू शुड, आई मीन लाइक आई डू नॉट सजेस्ट एनीबडी टू डू दैट। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपको ना ये इंटर्नशिप के लिए
इंटर्नशिप के लिए आईसीएसआई के पोर्टल में टाइम टू टाइम जो है ना, आईसीएसआई के पोर्टल में डिपेंडिंग अपॉन योर सिटीज़, टाइम टू टाइम वहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो लोग अपडेट करते रहते हैं। एंड नन ऑफ द प्लेसमेंट इज़ बिलो 10K। मेरे को 10K से नीचे दिखा नहीं आज तक कि 10K से नीचे कोई दे रहा है वहाँ पे फॉर योर ट्रेनिंग, ठीक है। ये मिनिमम आपको वहीं पे मिल जाएगा, अंडरस्टूड। 10K का जो स्टाइपेंड है वहीं पे मिल जाएगा आपको फ्रॉम योर आईसीएसआई के पोर्टल। लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया मेथड रहता है टू चेक ऑन द इंडस्ट्री रेट, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर का पॉइंट है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स या फिर सीनियर से कनेक्ट करो, अंडरस्टूड। लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स रहते हैं, उनको ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा बताओ? टाइम टू टाइम अपडेट मिलता जाएगा कि इस सिटी में ये वाला ओपन है, वो वाला ओपन एंड ऑल दैट, ठीक है। इससे बढ़िया मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। आप अपने सिटी के सबसे जो अच्छे फर्म्स है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके सिटी में अच्छा फर्म, अच्छा कंपनी कौन से है, ठीक है। उनको रीच आउट करो, उनके सीएस को रीच आउट करो, या फिर उनके ऑफिस में डायरेक्टली जाओ विथ योर रेज्यूमे, ओके, विथ योर रेज्यूमे। एंड रेज्यूमे बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना होता है एंड ऑल दैट आई विल टीच यू इन अ डिफरेंट वीडियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका रेज्यूमे जो है इट रिफ्लेक्ट्स यू कि आप कैसे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो सीएस किसी भी, आप जिस भी सिटी में हो उसके थोड़ा मेहनत करना है, सिंपल बात ये है। अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हो तो 5K वाला स्टाइपेंड लेकर बैठे रहो घर पे, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है, एंड आई नो लॉट ऑफ स्टफ, आई नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, आई नो हाउ टू यूज़ वर्ड एंड एक्सेल शीट्स एंड ऑल दैट। अगर आपको पता भी नहीं है तब भी आपको इस झमेले में तो पढ़ना ही नहीं है, 5K स्टाइपेंड लेकर बैठे रहो एंड ऑल दैट। आई डू नॉट सजेस्ट दैट, ठीक है। आप अपने सिटी के जो कंपनीज है, फर्म्स है, उनको आइडेंटिफाई करो, गूगल मैप से निकालो, ठीक है। नियरेस्ट सीएस फर्म, नियरेस्ट या फिर अगर मेगा फर्म्स है, मतलब मल्टीपल सीएस सीए में एक साथ काम करो, उनके फर्म में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट कि आप ऐसा फर्म में ज्वाइन करो जहाँ पे सिर्फ सीए है एंड वो आपको सिर्फ सीए वाला काम ही कराएंगे, ये आई डू नॉट सजेस्ट, ओके। यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, यू हैव टू वर्क अंडर इस कंपनी सेक्रेटरी, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो इस झमेले में नहीं बनना है कि आप अगर सोच रहे हो कि सीए सुपीरियर है, उसके अंदर काम करूंगा तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा। गलत एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आपकी डिग्री में काम नहीं आएगा। काम आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेक्रेटरियल प्रोसेस, सेक्रेटरियल काम जो है वो अलग होता है, अंडरस्टूड। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने सिटी को आइडेंटिफाई करो, सिटी को आइडेंटिफाई करके सिटी में कौन से फर्म है, कौन से कंपनी है, उस प्रकार से आप डिसीजन लो, ठीक है। वहाँ पे जाओ, डायरेक्टली जाओ, रीच आउट करो उनको, ठीक है। या तो मेल से रीच आउट करो, या तो लिंक्डइन से रीच आउट करो, या तो डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, ड्रॉप योर रेज्यूमे, टेल देम दैट आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड ऑल दैट, दे विल कनेक्ट विथ यू। तो थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा पेशेंस रखना है अपने अंदर। इट इज़ नॉट कि ईडीपी खत्म होने की इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना ही है। यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू स्टार्ट योर सीएस प्रोफेशनल वाला प्रिपरेशन, एंड देन थोड़ा टाइम लो, 1-2 महीने का टाइम लो, एंड देन सर्च फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड इफ़ यू वेट फॉर इट, मैंने हमेशा देखा है जो भी स्टूडेंट्स फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं ना, वो रिग्रेट करते हैं लास्ट में। इफ़ यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ज्वाइन, बट इफ़ यू can't identify any good opportunities, then you wait for it a little bit, थोड़ा वेट करो। थोड़ा वेट करने के बाद then you search properly, you do your investigations, you wait for your opportunity, you search properly, you do some मेहनत, and then you get your ट्रेनिंग। नाउ व्हाट आर द वेज टू फाइंड इट आउट, मैंने आपको पहले बता दिया है। एक तो है कि द सिंपलेस्ट वे, जैसे आप ईडीपी करोगे वहाँ पे आप कनेक्शन बनाओगे किनके साथ, टीचर्स के बाद, उनके द्वारा आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो किसी भी फर्म एंड कंपनी में, विच आई डू नॉट हाईली रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको खटाया जाएगा ना, आपको जो है स्टाइपेंड बहुत कम मिलेगा, ठीक है। बिकॉज दे विल ब्रेन वॉश यू एट सर्टन पॉइंट, बिकॉज सी even they are CS, they're having their own firm, they do not want to pay you more, but they want you to work, understood, टायरलेसली आपको आपसे काम कराएंगे, लेकिन पेमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। इफ़ दे आर ऑफरिंग यू अ गुड स्टाइपेंड एंड ऑल, देन ज्वाइन, ठीक है, बट डू नॉट सेटल फॉर लेस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा है आईसीएसआई पोर्टल के ऊपर, पोर्टल में टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज़ जो है हमेशा अपडेट रहता है। मैंने कभी भी 10,000 से नीचे स्टाइपेंड वाला देखा नहीं है, लेट इट बी फर्म और अ कंपनी, ठीक है। आईसीएसआई के पोर्टल से आप करवा सकते हो।
then reaching out to the companies, to the firm that is there in your own city, reach them out, ठीक है। रेज्यूमे सेंड करो उनको, उनके मेल में ड्रॉप करो या फिर पर्सनली जाके वहाँ पे रेज्यूमे आप ड्रॉप आउट करो, दे विल कनेक्ट विथ यू, ओके। एंड दिस इज़ रियली वेरी प्रैक्टिकल एंड बहुत अच्छा रहता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आप मेहनत करो, आपको जानने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। व्हाट आर द सिचुएशंस एंड ऑल दैट थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, देखो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ भी है जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इफ़ यू डोंट हैव एन ऑप्शन इन सिटी, आपके सिटी में 10,000 से ज़्यादा तो कभी किसी को दिया ही नहीं गया है, तो आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी अगर ना हो, देन यू हैव टू ज्वाइन, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अदरवाइज यू चेंज योर सिटी और ज्वाइन इन योर ओन सिटी। समझ में आ रहा है? दिस आर सम डिसीजंस विच यू हैव टू टेक, वेरी क्रूशियल डिसीजन। अगर आपका सिटी बहुत झंडू सिटी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं मिल सकता। इफ़ यू हैव डन योर रिसर्च, इफ़ यू नो कि आप हमारे सिटी में तो ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं मिल सकता है, देन ज्वाइन इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो ये सब करना है। एंड ऑल्सो ज्वाइनिंग विथ योर सीनियर्स, जो सीनियर्स उनसे ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे लोगों को फॉलो करो, मैसेज करो, रेज्यूमे ड्रॉप करो। दिस आर द वेज हाउ टू गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, अच्छे कंपनी। नाउ द बिग क्वेश्चन इज whether to join a firm or to join a company. Both have their advantages, both have their disadvantages. I'll tell you very properly, ठीक है। देखो इसको समझो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिसिंग फर्म में, किसी भी फर्म में आप ज्वाइन करते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई भी फर्म अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, देयर शुड बी ए सीएस ओवर देयर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो। डोंट फॉल फॉर कि सीए के अंडर काम करना है, डोंट डू ऑल दिस शिटी स्टफ, ठीक है। आपका ट्रेनिंग इनकम्प्लीट रह जाएगा, शायद आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो लेकिन आपका नॉलेज इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ऑलवेज डू इट फ्रॉम अ फर्म जहाँ पे सीएस है, ठीक है। पीसीएस फर्म से ही करना है। गॉट इट? एक्सपोजर क्या मिलता है आपको, ये बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेनिफिट ये है कि आपको हाई वैरायटी क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। हर प्रकार के क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ओपीसी कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, छोटा मोटा ये वो, ठीक है। फिर आपके मतलब हर प्रकार की जो कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कंपनीज एंड ऑल दैट, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपका वो फर्म कितना बड़ा है एंड कितना अच्छा है, ठीक है ना। आपको सारा एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे आपको खटा के मार डालेंगे, समझ में आ रहा है? लगेगा कि ज़िंदगी नर्क बन चुका है यहाँ पे जब ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है यहाँ पे। पीसीएस फर्म में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है। वहाँ पे आपको शायद आफ्टर योर ऑफिस आवर्स पकड़ लो, आपको 10 से लेकर आपका 6 तक ऑफिस आवर्स है, उसके बाद घर में जाके भी लैपटॉप खोलने की ज़रूरत पड़ जाए। अंडरस्टूड? इतना ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है। ये उन बच्चों के लिए है जो जिनको स्टाइपेंड ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, जिनके लिए स्टाइपेंड ज़्यादा मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मैटर करता है, क्योंकि 21 मंथ्स का ही तुमको डालना है, पूरा आपको 100% डालना है। 21 मंथ्स का आपको स्ट्रगल है। उसके बाद जो आप निकलोगे ना, जिस नॉलेज से आप निकलोगे, आप किसी भी कंपनी में 60,000 तो आपका मिनिमम सैलरी रहता है। 60,000 रुपये आपका मिनिमम सैलरी रहता है। 60 फॉर अ बिगिनर। आप भाई क्लास 12 पास करके सीएस करके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फटाफट आपको जो फर्स्ट जॉब मिलेगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस मतलब ट्रेनिंग तो है ही, लेकिन किसी भी कहीं पे मतलब एज अ सीएस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको 60,000 जो है मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग में मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो खटा के मार डालेंगे, इस बात को याद रखना है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको अच्छे से समझो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे आपसे, लेकिन एक्सपोजर बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्रकार के काम सीख जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है विद योर आपके जो सीनियर्स है, जो भी आपके वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, आपसे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे ज़ीरो रहता है, ठीक है। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा क्या कहाँ पे फंस चुका हूँ। अंडरस्टूड? ये सारा सिचुएशन आपको यहाँ पे फील करने को मिलेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट। किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से कुछ समझा दे, ठीक है। आपको सीख के, गाली खा के सीखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका पीसीएस वाला। लेकिन इससे जो निकलता है ना इंसान, मतलब जो कैंडिडेट यहाँ पे आता है, उसके बाद जो निकलता है आफ्टर 21 मंथ्स, ही बिकम्स अ जेम। इतना तब जाता है यहाँ पे कि वो जेम होके निकल जाता है। अंडरस्टूड? ही नोज और शी नोज अ लॉट ऑफ वर्क इफ यू आर वर्किंग ऑन अ पीसीएस फर्म, ठीक है।
अंडरस्टूड। यहाँ पे आपको कोर जो है सेक्रेटरियल ऑडिटिंग, आरओसी का फाइलिंग, यहाँ पे मोस्टली फाइलिंग वगैरह ही होता है। फाइलिंग, एनुअल कंप्लायंस, फेमा, ड्यू डिलीजेंस, बोर्ड मीटिंग का थोड़ा बहुत कम लेकिन होता है, ठीक है। लेकिन आपको फाइलिंग वगैरह जो है ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। वाइब तो एक प्रकार का एजेंसी लाइफ, फास्ट पेस्ड रहता है, मल्टी इंडस्ट्री वर्क जो है आपको यहाँ पे करने को मिल जाता है। नाउ अगर आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, एमएनसी लिस्टेड लार्ज प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। लार्ज प्राइवेट कंपनी अगर हो, लिस्टेड कंपनी हो तो बहुत बढ़िया, एमएनसी वगैरह हो तो और बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डीप स्पेशलाइजेशन मिलता है एक एंटिटी के ऊपर। अब तुमको एक चीज समझना है, जो भी तुम कंपनी ज्वाइन कर रहे हो वो जो जिस इंडस्ट्री का होगा उसका कंप्लायंस तुमको यहाँ पे बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे अगर तुम बैंकिंग, कोई बैंक वाले कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईसीआईसीआई कह रहा हूँ, आईसीआईसीआई वाले बैंक वगैरह जो है वहाँ पे उन्होंने एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, अच्छा खासा उनको स्टाइपेंड मिलता था एंड ऑल दैट। तो बैंकिंग अगर आप सेक्टर चूज कर रहे हो तो वो कंपनी बैंकिंग का है, तो उसमें जो काम होगा वो बैंकिंग रिलेटेड होगा, तो बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे काम आपको आ जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जैसे आप पीसीएस फर्म में आपको सारे सेक्टर्स के काम आते हो, यहाँ पे आपको सारे सेक्टर्स के काम जो है करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा डेडिकेटेड कि वो जो कंपनी वो किस इंडस्ट्री से है, ठीक है, उससे रिलेटेड रेगुलेशंस, लॉ वगैरह जो आपको वहाँ पे करने को, सीखने को सब कुछ मिलेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे काम का प्रेशर भयानक कम रहता है। यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है काम का प्रेशर एज कम्पेयर टू अ पीसीएस फॉर्म, ठीक है। आप अगर पकड़ लो दिन में 30 पीडीएफ बना रहे हो पीसीएस फॉर्म में, वही दिन में तुम एक पीडीएफ बनाओगे कंपनी में। काम का प्रेशर कम रहता है, स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे 20 से 25,000 का स्टाइपेंड आपको मिल सकता है, ठीक है। 15 तो मिनिमम है, 15 मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, ठीक है। फिर 20 या फिर 25,000 डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू। कैसे इंटरव्यू के बारे में मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे किस प्रकार से दिया जाता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा चीज, ठीक है। इस कंपनी में तुमने अच्छा कर लिया, शायद इसी कंपनी में तुम सीएस बन जाओ, ये वाले अपॉर्चुनिटीज भी रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से फर्म में आप ज्वाइन करो, कौन से कंपनी में आप ज्वाइन करो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। कंपनी में ज्वाइन करने से तुमको पढ़ने का, सीएस प्रोफेशनल का जो पढ़ाई है वो करने में तुमको सुविधा होगा। यहाँ पे तुमको थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि टाइम मिल जाता है आराम से, घर में जाके कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि घर में जाके लैपटॉप खोलना एंड ऑल दैट, आराम से तुम कर सकते हो, घर में आके पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, टाइम मिलता है आपको। लेकिन उसी प्रकार सीएस फर्म में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे पढ़ाई मेंटेन वगैरह करना, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, अंडरस्टूड। तो आपको किसी भी और दूसरे सीएस से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी है, अंडरस्टूड। तो आपको यहाँ पे उसी सेक्टर के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, बोर्ड का सपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे किया जाता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है एंड ऑल दैट, इन हाउस कॉर्पोरेट हाईली स्ट्रक्चर्ड आपको वाइब्स वहाँ पे मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डिलीवर इट, ठीक है, इजीली, अंडरस्टूड। तो ये होता है तुम्हारा कंपनी वाला। नाउ यू डिसाइड कि आपको करना क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप ज्वाइन करो, या तो पीसीएस फर्म या तो कंपनी। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी ज्वाइन कर रहे हो, बीच में अगर आपको छोड़ने का मन कर रहा है, स्विच करने का मन कर रहा है, डेफिनेटली यू कैन स्विच, प्रोवाइडेड दैट स्विच तभी करना है इफ इट इज अ वेरी हाईली रिक्वायर्ड थिंग। अगर आप लोग शिफ्ट कर रहे हो, फ्रॉम पूरा फैमिली शिफ्ट हो रहा है एक सिटी से दूसरा सिटी, उसके बाद आपको जो है जाना ही है कहीं दूसरे सिटी में, तो आपके पास ऑप्शन नहीं, यू कैन स्विच, ठीक है। दूसरे फर्म, दूसरे कंपनी में आप स्विच कर सकते हो। अदर देन दैट वर्क प्रेशर के कारण स्विच मत कर लेना, ठीक है। मैं ये एडवाइस करूंगा, मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस दी, जिन्होंने माना है वो लोग ने आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन जो है उन्होंने हमको बताया कि सर आपने बहुत सच्ची बात बताया कि स्विच नहीं करना चाहिए था, मैंने अच्छा हुआ स्विच नहीं किया, ठीक है। तो ट्रेनिंग के प्रेशर में अगर आपको लग रहा है कि मैं स्विच कर लूँ तो स्विच मत करो। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं यार फर्म में बैठ के मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मेरे को टाइम पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं आप स्विच कर लो, ठीक है। आपका मेन प्रायोरिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपका सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, ये मेन प्रायोरिटी होना चाहिए।
प्रायोरिटी ट्रेनिंग सेकंड लिस्ट में आता है, सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका सीएस प्रोफेशनल क्रैक होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर भी आप अगर एडजस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि डज नॉट, यू आर नॉट कंप्रोमाइजिंग विथ योर प्रिपरेशन फॉर योर सीएस प्रोफेशनल। इस बात का ध्यान रखना है, बस सिंपल एज दैट। ठीक है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, दुनिया आपको कहेंगे, आपके कॉलीग्स वगैरह कहेंगे कि यार रह जा, कर लेगी, कर लेगा एंड ऑल दैट। सुनो मत, अगर तुमसे ना हो पा रहा है तुम स्विच कर लो, कहीं इजी जगह पे चले जाओ जहाँ पे थोड़ा स्टाइपेंड कम मिलता हो लेकिन पीस ऑफ माइंड है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अंडरस्टूड? अब सुनो, रिज्यूमे आपको बनाना है 1 पेज रिज्यूमे, बहुत ब्यूटीफुल, उसमें सब कुछ आना चाहिए। इसको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं फॉर योर सीएस। यू नो, यू वांट टू ज्वाइन अ फर्म, ज्वाइन अ कंपनी, आपको अपने रिज्यूमे देना होता है, अपलोड करना होता है एंड ऑल दैट। तो कैसे करना है, कैसे कैसे आपके एक्सपर्टीज को एंटर करना है एंड ऑल दैट, आई विल हेल्प यू, आई विल टीच यू ऑल दैट। ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टू मेक इन रिज्यूमे एंड ऑल दैट, आई विल टीच यू। रिज्यूमे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखियो। ठीक, अब सुनो, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वेरी सिंपल मैं चीज बताता हूं। अगर पीसीएस फर्म है तो आपका पूरा कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज वो लोग चेक करेंगे कि आपका कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज कैसा है। अगर आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो कंपनी वाला चेक करता है कि अगर किस इंडस्ट्री से है वो कंपनी, तुमको ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आप हमारे कॉर्पोरेट कंप्लायंस है उसको एक बार पढ़ के जाना है प्रॉपर्ली, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, याद रखना। क्या ये समझ में आ रहा है? कंपनी लॉ तो बेस रहेगा। अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन कंपनी लॉ बेस्ड रहेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कंपनी है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करने का एडवाइस है ये। पीसीएस फर्म है तो आपको 100% कंपनी लॉ नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। अंडरस्टूड? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर एक इंटरव्यू 2 इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है तो आगे जाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर कंपनी लॉ, ध्यान रखना। क्या ये समझ में आ रहा है? लिस्टेड कंपनी है तो आपका सेबी, अगर कंपनी में जा रहे हो लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी के रेगुलेशंस अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, कंपनी लॉ अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ये सारा आपको फेमा वगैरह ये सब कुछ रिवाइज करके जाना है। 100% एक्यूरेट आंसर्स ना दे पाओ लेकिन फिर भी क्लोज इनफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये आपको एडवाइस में, ये एक ही एडवाइस है, सिंपल एडवाइस है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपको एक्सप्लेन करने के बोला जा सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट का स्कोप क्या है, बताओ आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एज अ सीएस प्रोफेशन में, क्यों हो, है ना, सीएस प्रोफेशनल क्यों बनना चाहते हो। तो ये सारे जो है ना 10 क्वेश्चन में से 1 2 3 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो ऐसे जो है जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन बाकी जो है इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहता है। डिफरेंस बिटवीन बोर्ड रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये वगैरह पूछा जा सकता है। 149 बता दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट, अगर आपका ऐसा फर्म है जहाँ पे मेगा फर्म है, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपको सीए रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है। सीए रिलेटेड इन द सेंस की ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग वगैरह, ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ रखा है वो सब कंपनी लॉ में, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कौन से इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू के लिए अलग अलग मेथड का प्रिपरेशन होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री दैट कंपनी इज वर्किंग ऑन, ठीक है। अगर फर्म है तो आपको 100% नॉलेज होना ही चाहिए कंपनी लॉ का। गॉट इट? ये आपको दिमाग में रखना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पुट करूंगा सो दैट आप लोग रिवाइज करके आराम से जा पाओ आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम को भी परस्यू करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है बाद में करेंगे, सबसे पहले प्रोफेशनल निकाल देना है। कुछ बच्चे कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रैटेजी, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे जो फायदेमंद रहेंगे, 90% बच्चे, वो सीएस प्रोफेशनल को साइड बाय साइड ट्रेनिंग के साइड बाय साइड करने से ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, ईडीपी 15, क्लासरूम ईडीपी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करना है क्लियर करना है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का सीएलडीपी आपको कंप्लीट करने के बाद आप सीएस बनते हो, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका है, पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम लोग रिज्यूमे बनाना सीखेंगे,
ठीक है ना, इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक करना सीखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस को। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा है। ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे वेबसाइट में, ग्रुप्स में अवेलेबल करवा दूंगा, इसको डाउनलोड करके रख लेना है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय।